Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM. And dear friends, this is Bob with you. Thank you so much for tuning in today on our Motivational Mondays right here on Bob's Radio 21.37 FM, connecting hearts and creating hope. Well, I've got a coffee cup in my hands and I'm drinking my coffee as I speak. I hope you all have a coffee or a tea or anything that gives you enjoyment in your hands as we go through the segments. We have some wonderful speakers, some wonderful subjects that we bring to you. We also have a very, very special guest with us today, and there's lots more that we want to talk to you about. Well, dear friend, if you are here for the first time, remember you can see all our previous episodes on YouTube or on Facebook by simply typing in Bob's Radio 21.37 FM and you'll find all our previous episodes there. If you'd like to write to us, simply email us on bobsradio21.37fm at gmail.com or just WhatsApp us on +91 906 181 17307, and we love to hear from you. If there are song requests you want us to play, please send them to us and we'd love to dedicate those songs for you. Well, as always, I have two wonderful RJs with me in the virtual studio. Hi, RJ Anuj. हाय बॉब, जय मसीह की और गुड इवनिंग टू हमारे सारे श्रोताओं को गुड इवनिंग. Jai Masiki, and wonderful to have you back again. I think it's we don't need to say that again, but I think the temperatures are getting higher and higher. टेम्परेचर इज गेटिंग हायर. सॉरी, टेम्परेचर तो बढ़ रही है, साथ साथ में ईंधन का दाम भी बढ़ रहा है. आपको पता है ना, Exactly. रिसेंटली उन्होंने ईंधन का दाम बढ़ा दिया. हम लोग को घमंड होता था कि हम लोग सबसे कम दाम पे पेट्रोल दे रहे थे और गाड़ी कितना भी चला सकते थे. अब पूरा वो प्लानिंग चेंज करना पड़ रहा है. हाँ, ये तो बहुत wonderful, it's a thing that many people don't understand. I mean, people sitting in other parts of the world, when I have traveled to other countries outside of the Middle East, लोग सोचते हैं कि इधर तो बहुत सारा, oil is there. So, we should be getting it in cheap and prices should be low, but I don't think that is the truth of the matter, right? अभी तो बिल्कुल भी नहीं. अभी तो बहुत आपको प्लान करना पड़ रहा है. अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कार पूलिंग, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग सोचने लग गए. And life has become so expensive, है ना? सही, बिल्कुल सही है. Yeah, life has become so expensive. I think people are really struggling with the expenses going up, and that is the truth everywhere in the world, and it is also very true in the Middle East as well. Well, that's life, isn't it? Okay. We also have after a while Singh Saab with us. RJ Singh, hi. Hi Bob. Good evening मेरे सब श्रोता गणों को, और गुड इवनिंग बॉब, कैसे हैं आप? Yeah, we have been praying for you and you were not keeping well. Tell us, how are you doing now and what happened and how has been the recovery? मैं अपने श्रोता गणों को बताना चाहता हूँ, और मेरी तबीयत सच में काफ़ी ख़राब थी पिछले सप्ताह, और कान में कुछ समस्या हो जाने के कारण मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी. पर धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ. और आज फिर से आप लोगों के साथ फिर से इस प्रोग्राम में जुड़ पाया, इसलिए बॉब, अनुज और मेरे सब श्रोतागणों को मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ. Well, we are so happy, so excited to have you with us, healthy. Thank the Lord for His healing. He's a prayer answering God, है ना? Prayer answering. बॉब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि सिंह साहब हमारे रेडियो शो के, स्पेशली रेडियो शो के पावर हाउस है ना. तो इस तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंह साहब आपके जोरदार आवाज में जय मसीह एक जोर से बता बोलिएगा. जय मसीह की, जय मसीह की सबको. Jai Masih ki. All right, we will come back. We have lots more that we want to talk, but before that, Singh Saab, shall we go for a song? हाँ बॉब, बिल्कुल.
All right, let's listen to this beautiful song and we'll be right back. तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, वही अव्वल और आखिर वही है खुदा। अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, वही अव्वल और आखिर वही है खुदा। आओ सजदा करें उसी के चरणों में, आओ सजदा करें उसी के चरणों में, वो नजात दहिंदा वही रहनुमा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, बेटा हमको दिया किया खुद से जुदा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा। Beautiful song, Singh Sab. या बहुत ही सुंदर गीत। तूने अपना वादा पूरा किया। सच में परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया, जैसे कि हमने इस गीत में सुना। इस गीत के बोल इसी अर्थ को बताते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और ये सच में परमेश्वर का प्रेम है, जिसने हमें बहुत ही गहरे प्रेम से हमें प्रेम किया और हमें अपना संतान बना लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे महान प्रेम के लिए। Absolutely. Well, thank you for that. And what a wonderful voice. I love that song. Anuj, we always love to look around us and see what's happening around us. One of the segments that we have on our English language program is the Tortured for Christ segment. And we look at incidents that are happening around the world where Christians are tortured for their faith. And I know the other day you brought an incident to my notice that happened. Maybe we can share a little bit about that. सही है बॉब। बहुत ही एक्चुअली दुखद बात है ये नाइजीरिया में हुआ एक घटना है जो अभी हाल ही हुआ है। नाइजीरिया में चर्च में लोग जब संडे वर्शिप के लिए आए हुए थे, बेसिकली वो पेंटिकॉस्ट संडे बनाने के लिए आए हुए थे। तो कुछ लोगों ने आके गोलीबारी स्टार्ट किया। वहां पे ऑलमोस्ट 50 के ऊपर लोग, अभी तो गिनती पता नहीं चल पाया, पर 50 से ऊपर लोग घायल हो गए और उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी हैं जो घायल हुए हैं। ये बहुत एक दिल को दर्द करने वाला एक पॉइंट है, क्योंकि लोग वहां पे प्रार्थना करने आते हैं, अपने दुख को बांटने आते हैं, और ये शैतान का काम है। और क्या बोल सकता हूँ कि Exactly. Yeah. And this is happening in many places around the world, right? Evil is, and there is no reason. I mean, the problem is, people are trying to find out the reason, but like you very well pointed out, when man has become evil and when sin dwells in your heart, then man can do anything that is evil, and we see this all over the world, sadly. वेरी वेरी ट्रू बॉब। एक चीज जो बताना चाहूंगा, जो मेरे दिल में भी आया, ये सब जब देखते हैं तो हमें ये याद करना चाहिए कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। ये सब जो चिन्ह हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये एक ऐसा चीज जो हमें बता रहा है कि देखो, क्योंकि प्रभु आने वाला है। ये हमारे सामने इसलिए हो रहा है, तो जागृत होने के लिए, हमें जागृत होने के लिए इसके बारे में। Absolutely. And I think, Singh Saab, the situation in India is also not very different, right? We have these issues in many parts, in many parts of India as well. Yeah. हाँ बॉब, सब जगह कुछ इसी प्रकार की मसीहों की स्थिति है। और बहुत सारे मसीहों को भी यहाँ पर ऐसा ही सताया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा ही हाल है मसीहों का।
We don't want to call out or blame anybody or any party or any organization, but we just want to say that this is a fact. The truth of the matter is that these persecutions are happening in a democratic socialist republic like India as well. And one of the things that I noticed that the people they when they came to church that day and when they were killed, they came to celebrate something called the Pentecost Sunday. And I think, Anuj, that is a day that that Christians all over the world, especially many denominations, give a lot of importance to that day, है ना? बिल्कुल सही है बॉब। ये पेंटिकॉस्ट डे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला कलीसिया उस टाइम बनाया गया, तो पैदा हुआ बेसिकली कह सकते हैं। So and I mean that is when in the upper room when the disciples were sitting together and when they were waiting on the Lord, that the Holy Spirit descended upon the apostles and other disciples, and that is where the church had begun, है ना? And that day is a reminder of that. But then what happened after that is also very significant, and that is what always draws my heart to this. As soon as the day of Pentecost and the church was born, immediately after that there was persecution. Immediately. And what happened was the disciples, they spread across the world, and like the scripture says, first in Jerusalem, in Samaria, and even to the end of the earth. They went to the end of the earth. We know the other day on our English program we were talking about Apostle Thomas. I mean, he came all the way to India, right, to and shared the gospel. I mean, they went all over the world to share the gospel, है ना? बिल्कुल सही। अभी हमने जो गाना सुन रहे थे ना बॉब, तूने पूरा किया अपना वादा। सो गॉड हैज फुलफिल्ड हिज वादा, बट उन्होंने एक कमांड भी दिया जाने से पहले। जीसस गिव अस अ कमांड, to go and spread out the gospel, tell to people who have not reached, जिन्होंने ये सुसमाचार को नहीं सुना, उनको जाके बताओ। Exactly. वो एक कमांड है। ये परमेश्वर ने तो अपना वादा पूरा किया, पर क्या हमने ये वादा उन्होंने जो हमें बताया बोला करने के लिए वो पूरा किया, ये एक सवाल है। हाँ, ये एक बहुत important सवाल है। और today over 3 billion people, a third of humanity, have yet to hear the good news of Jesus. Singh Saab, I mean that is a big number. बहुत ही सही। और आपने एक हमारे लिए एक सवाल खड़े कर दिया बॉब, सच में, कि क्या हम इतने, जो हमारी बड़ी संख्या हमारे सामने आपने बताया, क्या हम इन तक सुसमाचार को पहुंचा रहे? इतना ही नहीं बॉब, पर मैं आप लोगों से, अपने आरजे दोस्तों से और मेरे श्रोतागणों से मैं कुछ आंकड़ों को शेयर करना चाहता हूं, कुछ आंकड़ों को बताना चाहता हूं। आप लोग भी शायद इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। मसीहों की तरफ से जो लोगों को मदद किया जाता है या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उसमें से मात्र 1% जो रकम है वही इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा ये कि मात्र 5% क्रिश्चियन ऐसे वर्कर्स हैं, या जिनको हम इवेंजलिस्ट कह सकते हैं या सुसमाचार प्रचारक कह सकते हैं, मात्र 5% ही ऐसे लोग हैं जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक वे पहुंचा रहे हैं। ये कितनी दुख की बात है। और इतना ही नहीं, पर 100 में से 42% हमारे इस पृथ्वी में 42% ऐसे लोग हैं या ऐसे समुदाय हैं जिन तक अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। और 86% ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं जिन्होंने अभी तक मसीह को अपने जीवन में देखा ही नहीं है या उन्होंने मसीह को पहचाना ही नहीं है। और इससे ज़्यादा एक और बात ये कि हर दिन 1,60,000 लोगों, ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, और वे लोग उस अनंतता में पहुंचने से आज वंचित हो गए। ये कितनी दुख की बात है। और बॉब, जो आपने जिस संख्या को बताया उसी को एक बार और बोलना चाहता हूँ। 41% अर्थात कम से कम 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मसीह के नाम को सुना भी नहीं है। ये कितने दुख का विषय है। और इतना ही नहीं, ये हमारे लिए एक
चुनौती है, एक चैलेंज है। क्या हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? इस चुनाव को क्या हम, इस चुनौती को क्या हम स्वीकार कर रहे हैं कि जब इतने लोगों ने मसीह के नाम को नहीं सुना है, आप और मैं घर बैठ के आज हम क्या कर रहे हैं? मसीह के लिए क्या हम Absolutely. काम कर रहे हैं? Absolutely, absolutely. The numbers are staggering. 160,000 people are Yeah. dying every day and they do not know Christ. Yeah. And आपने जो बताया अभी 3.2 billion people, 41% of the whole population on earth have never heard the name of Jesus. Well, it is important that we look at these numbers and we realize how much more needs to be done. Well, we have with us Sister Mary Lijish on our segment Choti Kahaniyon Ki Badi Baat. Let's see what she has to tell us today. पता है क्या आने वाला है? क्या? छोटी कहानियों की बड़ी बातें। कहानियाँ? हाँ। छोटे कहानियों के बड़े बात में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉप्स रेडियो और मैं हूँ आपके साथ मैरी। स्वर्ग का एक काल्पनिक नजारा देखो। दो स्वर्गदूत दिख रहे हैं। एक बहुत व्यस्त है या बिजी है और एक फालतू बैठे हैं बिना कोई काम के। पता है क्यों? व्यस्त या बिजी स्वर्गदूत सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास ले जाने वाले हैं। उनके पास आराम या फुर्सती नहीं है। अगला जो फालतू बैठे हैं बिना काम के, वो है जो धन्यवाद या प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने पर थैंक यू ले जाने वाले हैं। क्या करें, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने पर कोई धन्यवाद या थैंक यू बोलते ही नहीं, इसलिए वो खाली बैठे हैं। उनकी तरह नहीं है जो प्रार्थनाओं को ले जाने वाले बहुत व्यस्त या बिजी स्वर्गदूत है। मित्रों, क्या हम धन्यवाद बोलते हैं जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है? सोचिए और सुनते रहे पॉप्स रेडियो। बाय बाय। Yes, सोचिए अनुज भाई। बिल्कुल सही बॉब। एक्चुअली जब सिस्टर मेरिन सिस्टर के ये जो कहानी, जो शॉर्ट सेगमेंट्स वो आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक चुनौती की तरह होता है हमेशा और कुछ हाँ। नया सिखाती है। स्पेशली अभी जो सिस्टर ने बताया, हमारी ज़िंदगी में हमको परमेश्वर बहुत आशीषें देता है। रोज ब रोज अगर आप सोचने लगो कि आप जो सांस ले रहे हो अभी इस वक्त, वो भी परमेश्वर का एक देन है। पर हम में से कितने लोग हैं जो जब कुछ पाते हैं, हम परमेश्वर को अपने दिल से धन्यवाद बोलते हैं। जब मुश्किलें में पड़ते हैं हम परमेश्वर को याद करते हैं, पर जब हमारे मुश्किलें हट जाते हैं हम भूल जाते हैं। जो 9-10 कोड़ियों के बारे में कहानी हम बाइबल में देखते हैं, वही कहानी सेम चीज़ बताती है। 10 लोग आए परमेश्वर के यीशु के पास, पर उनमें से बस एक ही था जो वापस आया परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। बिल्कुल सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह इसको बताया है। Interesting. Yes. Well, why don't we hear another song and then we'll bring our special guest on air? Yes? Yes, Bob. All right, here we go. Let's listen to this beautiful Hindi song, Zehnasi. अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी। तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। 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 ज़हनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं।
तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। तेरी आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बुना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुशनसीब हूँ मैं, ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद। मैं या Beautiful. और शायद बॉब जै नसीब का मतलब शायद आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। Please tell me, please. नहीं, सोचना अच्छा है, पर जरूरी नहीं है कि समझ रहे होंगे। जै नसीब का मतलब आई एम द ब्लेस्ड वन, दैट इज जै नसीब हूँ मैं आशीषित हूँ या ब्लेस्ड हूँ, उसको उन्होंने वहाँ पर बताया। और मैं सोचता हूँ बॉब आपने भी शायद तबला में ध्यान दिया होगा बहुत, हाँ. है ना? या Exactly. उसमें जो Beautiful. तबला जब गाना थोड़ा सॉफ्ट हुआ, तबला वहाँ पे बहुत ही अच्छा, उसका एक टोन, उसकी क्रिस्पीनेस मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और वो गाना सच में अच्छा है। वो जो कैमरॉन फीमेल मेंडिस आर्टिस्ट का, का जो वॉइस है, जो या उसमें जो द स्वर, मेलोडियस, beautiful, या beautiful. इट्स And if you मेलोडियस, remember, we had Philemon Anand या a while back on Bob's Radio, और Philemon Anand ने एक cover version किया है ये ज़ै या नसीब का. So, dear friends, dear listeners, if you haven't heard that segment, please visit our Bob's Radio page on YouTube or on Facebook and look for Philemon Anand. The day that he came, and there was a beautiful cover version of the song that he's done, and that's amazing. है ना? It's he's got that amazing voice. His या voice is perfect. All right, I think it's time we bring our special guest. बिल्कुल बॉब, मैं सोचता हूँ सभी इंतज़ार कर रहे हैं। Exactly. Well, dear listeners, we have a very, very special guest with us today. We have evangelist Benjamin Rout with us today. There is a long story that we want to share with you about his life, about what God is doing through him in that part of the world. It's an amazing story, an amazing life journey, and there's so much that we need to listen to. So let's begin. Let's bring Benjamin Rout on air and talk to him very quickly. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Benjamin, brother, welcome to Bob's Radio 21.37 FM. जय मसीह की ब्रदर, Jai बहुत Masih बहुत ki. धन्यवाद। Anuj, I think we've been waiting for this day for a long time, and I'm sure that you're so excited to have him finally. यस, बिल्कुल सही बॉब। जय मसीह की बेंजामिन भैया। जय मसीह की अनुज भाई, जय मसीह की। बेंजामिन भैया, पहले सबसे पहले एक आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप नॉर्थ में हो, आप एक इवेंजलिस्ट हो। नॉर्थ में आपको क्या बोलते हैं? आपको मीन्स कैसे बुलाते हैं? आपको पास्टर बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? जनरली मेरे को भैया ही, ब्रदर करके ही बुलाते हैं। ब्रदर लेकिन कभी कभी जब मैं बुलाया जाता हूँ वचन देने के लिए, तो कभी कभी रेवरेंड भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे को रेवरेंड ना बोलें, मैं एक साधारण भाई हूँ, सेवक हूँ, तो मुझे भाई ही बोलें। अच्छा। और बेंजामिन भैया, आप रिसेंटली एक वीबीएस के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद आए हो। ये अनुभव कैसा था आपका? मीन्स कोविड के बाद ये इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग सा था क्या? जी ब्रदर, बहुत ही एक अलग अनुभव रहा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हर साल वीबीएस हमारे घर में करते थे और बिंदास करते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं। परंतु हम लोग प्लान किए थे 2019 के गर्मी के मौसम में हम लोग बढ़िया से वीपीएस करेंगे, लेकिन उसके
पहले से ही थोड़ा ये लॉकडाउन का सिचुएशन चालू हुआ कोविड के कारण से, तो 2019, 2020, 2021 हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो उपयुक्त नहीं था करने के लिए कोविड के कारण से। परंतु इस साल जब हमने निर्णय लिया, प्रार्थना पूर्वक कलीसिया ने निर्णय लिया और सिर्फ बिलासपुर में नहीं परंतु एक नए जगह विचारपुर में, जहाँ पर पिछले 7 महीने से मैं रेगुलर हर शनिवार को जाके बाइबल स्टडी लेता हूँ। तो प्रभु ने ऐसा अगुवाई किया हम कलीसिया वालों को, प्राचीन भाई को, कि क्यों नहीं हम वहां पर भी करें। और वाकई में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि जहां हम उम्मीद नहीं करते हैं, वहीं से परमेश्वर हमारे लिए उम्मीद को लेके आते हैं। हालांकि बहुत गर्मी थी और हम बिलासपुर से सुबह 5:30 बजे यहाँ से निकल जाते थे क्योंकि हम सोचते थे कि ठंड में ही हम बीबीएस कर लें ताकि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हम करते थे और पेड़ के नीचे हम करते थे खुले वातावरण में, और बहुत ही मजेदार एक अनुभव हमारा रहा गांव के बच्चों के समय साथ में जब हम बीबीएस में थे। और हाँ, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और गर्मी होने के कारण से बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े, परंतु सब मिला करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम कलीसिया, एक छोटी सी कलीसिया है हम जिसमें हैं, परमेश्वर ने एक छोटी सी कलीसिया में हमको रखा है और हमने यही डिसाइड किया है कि हर साल हम कम से कम 4 से 5 वीबीएस अलग अलग गांव में करेंगे। और इस बात के लिए हम बातचीत करना भी चालू कर दी है अलग अलग पासबानों से, और परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, द्वार खुल रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत कठिनाई है, लेकिन कठिनाइयों में ही परमेश्वर रास्ता खोलते हैं। हर बात में परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यस ब्रदर। जी, या और बेंजामिन भैया में आपके माता पिता और आपका बचपन कैसा रहा, इस बारे में हमें बताएं। मेरा बचपन में मेरे को नटखट नीटू के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि मैं बहुत बदमाश था, नटखट था। और जी। मेरा घर का नाम नीटू तो था ही था, लेकिन प्यार से लोग मेरे को नटखट भी बुलाते थे। तो मैं अपने माता पिता का तीसरी औलाद हूँ और मेरा ऑफिशियल नेम बेंजामिन है और घर का नाम नीटू है। और मुझे अच्छा भी लगता है नीटू कोई मुझे बुलाए तो। और मेरे पिताजी वेस्टर्न रेलवेज में सीनियर टाइपिस्ट के पोस्ट में काम करते थे और काफी प्रभु से प्रेम करने वाले और परमेश्वर का भय मानने वाले एक माता पिता होने के कारण से परमेश्वर बार बार उनसे बातचीत कर रहा था। और फाइनली मेरे पिताजी ने वो निर्णय लिया कि वो राजस्थान छोड़ करके वो बिलासपुर आ जाएं। और तब मैं सिर्फ 9 महीने का गोद में था जब मेरे पिताजी रेलवे की नौकरी को छोड़े। और इस प्रकार से हम लोग राजस्थान से बिलासपुर सेवा के लिए आए। और मैं तो हूँ बस बोलता था, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता था। और जब मैं अपने सेंस में आया तब मुझे पता चला कि मैं बिलासपुर में। और इस प्रकार से आगे मैं बढ़ता गया। और ये छोटा सा मेरे बचपन का एक वाक्य है जो मैं आपको कह रहा था। ओके, चलिए। हमने सुना था कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है और आप कीबोर्ड बजाना भी जानते हैं। आपने ये कैसे सीखा और आपको कब ये एहसास हुआ कि आपको गाना गाना पसंद है या कीबोर्ड आपने सीखा? ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है भाई। जब मैं क्लास 11 से 12th में जब गया तो मेरे को मेरे लायक का सब्जेक्ट नहीं मिला। मेरे को बायोलॉजी लेने का इच्छा था, लेकिन 1% कम होने के कारण से वो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं आपको दूंगा तो दूसरों को भी देना पड़ेगा। तो मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी ने बोला बेटा आपको कॉमर्स मिलेगा, आप कॉमर्स पढ़ लो, कॉमर्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। मैं बोला पापा मेरे को ये जोड़ घटाना मेरे को बहुत कठिन लगता है और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है सब्जेक्ट मेरे को। तो पापा ने मेरे को रिक्वेस्ट किया बेटा कम से कम 1 साल आप पढ़ के देख लो। तो मैं 1 साल जैसे तैसे पढ़ के मैं जैसे भी पास हो गया। पर मैं बोला पापा मेरे से ये नहीं बनेगा, ये मेरे से नहीं होता है जोड़ घटाना। फिर पापा ने बोला फिर एक ही सब्जेक्ट आपके लिए बचता है और वो आर्ट्स है, लेकिन आर्ट्स भी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। और क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं था, तो आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के लिए मेरे को दूसरे स्कूल जाना पड़ा। और जब मैं वहां पहुंचा
द फर्स्ट डे व्हेन आई रीच देयर, मैं वहां जब पहुंचा तो जो क्लास में हम लोग सिर्फ 12 ही लोग थे, उसमें से एक हाँ। लड़का था अजय दुबे, जो ब्राह्मण दुबे इलाहाबाद का। और वो आके बोलता है, पूछता है कि आप क्लास में नए हो? मैं बोला हाँ भाई मैं नया। और उसने वो बोला कि आप गाना गाते हो क्या? मेरे को 1-2 सेंटेंस पूछने के बाद में उसका ये प्रश्न था कि आप गाना गाते हो? तो मैं बोला हाँ, हम तो चर्च में गाना गाते हैं। तो बोला नहीं, चर्च में नहीं, आप गाना गाते हो, आपकी आवाज़ गाने लायक आवाज़ है। तो मैंने अच्छा। उसको बोला हाँ, हम गाते हैं बोल करके। और इस प्रकार से उनकी संगति में मैं गाने लगा। और परंतु वो एक फ़िल्मी ऑर्केस्ट्रा की रीति से मैंने अपनी हाँ, हाँ। शुरुआत गाने में की। मेरे को तब तक मालूम भी नहीं था कि गाने का ऐसा टैलेंट भी होता है, अपन चर्च में गाते हैं, सब मिलके गाते हैं बोल करके। ये लेकिन गाने का एक ऐसा टैलेंट है, एक तोड़ा होता है, तब मेरे को समझ में आया। और कीबोर्ड बजाना भाई ऐसा हुआ जी। कि जब मैं ऑर्केस्ट्रा में था, तो हर 5 गाने के बाद में ये लोग ब्रेक लेते थे, है ना? हाँ, हाँ। छोटे-छोटे ब्रेक लेते थे। मैं बोला आप ब्रेक लो, लेकिन कीबोर्ड का आवाज़ थोड़ा कम कर दो, क्योंकि वो कीबोर्डिस्ट जैसा वो बजाता था तो उसको मैं उँगली को देख लेता था। और जैसे ही जी। वो लोग ब्रेक लेने जाते थे तो मैं उसको बजा-बजा करके देखता था। और जब वो हाँ, आता हाँ। था, बोले भाई आप इसको दबा रहे थे, मैं भी ऐसा दबा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? तो बोला ये सी कॉर्ड है, तो मैं इसको नोट कर लेता था। ऐसे कर के मैंने सीखा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah. बहुत I मैं think it's सोचता हूँ time. या हाँ. समय हो चला है कि हम एक और गाना सुने। Yes, and this song is by Benjamin Raut. Let's listen to this beautiful song, Yeshu Mera Sacha Sahara, and we'll come right back. यीशु मेरा सच्चा सहारा, यीशु मेरा सच्चा सहारा, हरदम साथ रहता, हरदम साथ रहता। यीशु मेरा सच्चा सहारा, यीशु मेरा सच्चा सहारा, हरदम साथ रहता, हरदम साथ रहता। यहोवा मेरा बल है, वही है मेरा ढाल, उस पर भरोसा रखने से बनते हैं सारे काम। यहोवा मेरा चट्टान है, वही है मेरा उद्धार, उसकी करुणा पाकर मैं उसकी प्रशंसा करूं। यीशु मेरा सच्चा सहारा, यीशु मेरा सच्चा सहारा, हरदम साथ रहता। Wow, what a voice! Amazing. बिल्कुल है सही ना? बॉब, बिल्कुल सही। जैसे ब्रदर बेंजामिन ने बताया कि उनके एक दोस्त ने उनके ये आइडेंटिफाई किया उनका, कि वो बोला कि आपका जो साउंड है वो गाने के लायक है। और ये गाना सुनने के बाद आई थिंक सो बिल्कुल बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। बेंजामिन भाई, ये गाना का ट्यून और लिरिक्स आपने लिखा है, राइट? हेलो। हाँ ब्रदर, परमेश्वर की दया से ये गाना मैंने नहीं लिखा, परंतु गाने का एक सौभाग्य मिला।
इस गाने को एक सिस्टर ने लिखा था और वो मेरे गाने से बहुत प्रभावित हुई। जब हमारा एल्बम निकला था, तो वो एल्बम जब मैंने उन्हें दिया, तो बोले कि ब्रदर हमारे पास में कुछ गाने हैं, क्या आप उसको ट्यून कर सकते हैं? मैं बोला बिल्कुल ट्यून कर सकते हैं। और ट्यून करके उसमें जो वर्ड्स भी जो थोड़े से सुधारने थे, उसको सुधार करके फिर उसको रिकॉर्डिंग किया गया है। अच्छा, बेंजामिन ब्रदर, आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आपने जो अपनी गाने की करियर फिल्मी गाने गा के एक फिल्मी ग्रुप से में गाना स्टार्ट किया, और एक प्लेबैक सिंगर की तरह बेसिकली आपने स्टार्ट किया, पर ये आपने करियर के रूप में ना लेकर आपने अपने जीवन को बदलने वाला एक निर्णय 23 दिसंबर को लिया। ये निर्णय जो आपने लिया, ये क्या आसान निर्णय था? इसके कारण आपको ये इस निर्णय के कारण आपको कुछ भुगतना पड़ा? ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, 23 दिसंबर का जो घटना मेरे साथ घटा है, वो बहुत ही हास्यास्पद है। मैं अभी भी उसको याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही हँसी आता है मेरे को। परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा होने दिया। 23 तारीख को जब मैं प्रोग्राम से लौट के आ रहा था, तो मैंने अपने बड़े भाई से, जो बीच वाला भाई है, उससे कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, थोड़ा प्रोग्राम है और यहाँ पर खिड़की के पास में आप सो जाना, सामने वाली खिड़की में कमरे में, और चाबी को यहाँ रख देना ताकि मैं चाबी निकाल के खोल के अंदर आ जाऊँ। परंतु उस रात वो कहीं और जाके सो गया और जहाँ पर उसको सोना था वहाँ पे पापा जी किताब पढ़ते-पढ़ते वो सो गए। और मैं रात के करीबन 3 बजे आया प्रोग्राम खत्म करके, और मैं उठा रहा हूँ, उसका घर का नाम है बबलू। "हे बबलू उठ, उठ।" और ऐसा उठा रहा हूँ, वो उठ नहीं रहा है। फिर मैं एक छोटा-सा पत्थर लेके मैं इसे मारता हूँ, मैं उठेगा बोल करके। जब मैं उसको म मारा तो उठ एक ऐसा उठने के जैसा कुछ मेरे को दिखाई दिया। लेकिन मैं देखा ये बबलू जैसा तो नहीं, कोई और है। फिर जब वो चेहरा एकदम सामने आया तो मेरे तो होश, बोलते हैं ना, फाख्ता कबूतर उड़ गया, ऐसा वो मेरा स्थिति हो गया। तो पापा बोले तुम और इस वक़्त तुम अंदर आओ। फिर दरवाज़ा खोले और अंदर आए। मैं अंदर प्रवेश किया और मुझसे पूछे इतनी रात की तुम कहाँ से आ रहे हो? ओ पापा एक प्रोग्राम था, सर ने मेरे को बुलाया था, तो मैं गाना गाने गया था। तुम कौन-सा गाना गाते हो? मतलब ऐसे ही सामाजिक टाइप का गाना रहता है पापा, प्रोग्राम था, पार्टी था, तो मैं गया था बोल कर के। तो बोले तुम गाना गा के दिखाओ। मैं बोला पापा हम सुबह गाता हूँ ना आपके लिए, अभी रात के 3 बज रहा है, आप भी सो जाइए, मैं भी सोता हूँ। नहीं, नहीं मेरे को अभी सुनना है। तो मैं कौन-सा गाना गाऊँ, मैं बड़ा असमंजस में फँस गया। फिर मेरे को याद है हाँ, ये वाला गाना गा देता हूँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो मैं वो गाना गाए, बहुत एन्जॉय किए पापा मेरे। लेकिन बोले गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका प्रेज़ेंटेशन थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को। और फिर वो बोले देखो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखो, मैं एक प्रभु का दास होकर के तुमसे ये बात कह रहा हूँ। परमेश्वर ने ये तोड़ा तुम्हें दिया है, और मान लो अगर परमेश्वर ये तोड़ा तुमसे वापस ले लेगा, तो तुम भीख माँगने का लायक भी नहीं रहेगा। ब्रदर, मेरी आवाज़ को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उस रात के मेरा नींद वाक़ई में उड़ गया बोलते हैं। मैं बिस्तर में करवटें बदलता रहा, मुझे रात भर यही डाउट, यही चिंता सताता रहा कि अगर परमेश्वर ये तोड़ा ले लेगा, छीन लेगा, तो मैं क्या करूँगा? और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अब ये गाना वगैरह नहीं गाऊँगा, और अगर अब मैं गाऊँगा भी तो सिर्फ़ प्रभु की महिमा के लिए गाऊँगा। और इस प्रकार से मैं दूसरे दिन जा कर के अपने मित्रों से, जो ऑर्केस्ट्रा में बैंड में थे, कुछ तो शादीशुदा थे और उनके कारण से उनकी जीविका चलती थी। मैंने बोला, भाइयों मैं निर्णय लिया है कि मैं नहीं गाऊँगा गाना, क्योंकि मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को परमेश्वर की महिमा अकेले गीत को गाना चाहिए। और मैं एक लीड आर्टिस्ट भी था। बहुत सारे आवाज़ों में मैं गाना गाता था सिवाय उदित नारायण के। तो मेरा डिमांड बहुत ज़्यादा था। मैं भिलाई के, कोरबा के और बड़े-बड़े ऑर्केस्ट्राज़ में भी गाया मैं, परंतु वो मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। पर इस प्रकार से जब उन्होंने सुना, अच्छा तू ऑर्केस्ट्रा छोड़ेगा? तो आते ही साथ उन्होंने मेरे को 2-3 झापड़ मारा, घूँसे मारे, थप्पड़ मारा, और ज़ोर से मारने के कारण से मेरी ये जो होंठ था वो कट भी गया था, खून भी निकलने लगा। मैं बोला आप कुछ भी करो, मारो-पीटो, लेकिन भाई मैं अब मैं नहीं गाऊँगा।
और वो दिन है और आज का दिन है। वे कभी-कभी मेरे दोस्त बीच में मेरे को मिलते हैं और बोलते हैं, "अरे भाई नीटू अभी भी समय है, तू वापस आ जा।" मैं बोला, "नहीं, एक बार मैंने मन बनाया है मेरे परमेश्वर की आराधना करने का।" और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन से मैंने परमेश्वर के महिमा के लिए गीतों को गाने के लिए अपनी आवाज़ को खोला है, मुँह को खोला है, उस दिन से मैंने इस बात को जाना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स और यहाँ तक कि जी टीवी में भी गाने का मौका मिला, लोकल रेडियो चैनल में भी गाने का मौका मिला और विदेश भी जाने का मौका मिला। ये सिर्फ़ गाने के कारण से है और वो परमेश्वर का दिया हुआ है। तो परमेश्वर का तोड़ा, परमेश्वर ने दिया उसकी महिमा के लिए और आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ प्रभु की महिमा के लिए, अगर रोड में भी खड़े होने के लिए खड़े होकर के गाने का मौका मिला, मैं आनंद के साथ गाता हूँ, चाहे वो स्टेज हो, चाहे कहीं भी हो। प्रभु की महिमा मैं बड़े आनंद के साथ करता हूँ और इसी में मैं आनंदित हूँ और इसी में मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। स्पेशली आपने जैसे बताया, मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके जो भाई है उनको प्रभु ने उस समय कहीं और जाके सोने के लिए प्रभावित किया, जिसके कारण आपके पापा ने आपको उस दिन पकड़ा और ये आपकी जिंदगी में ऐसा एक अनुभव और बदलावट आया। अब बेंजामिन भाई का एक और गाना है मेरा मन, क्या हम सुन सकते हैं उसके? All Yes, right, brother. let's listen and we'll come back. Yes. मेरे मन तू शोकित ना होना, मेरे मन तू दुखित ना होना, मेरे मन तू खेदित ना होना, मेरे मन तू चिंतित ना होना, मेरे मन तू शोकित ना होना, मेरे मन तू दुखित ना होना, मेरे मन तू खेदित ना होना, मेरे मन तू चिंतित ना होना। परेशानियों में अकेला चल रहा है क्या, गर तू कठिनाइयों में, गर तू परेशानियों में अकेला चल रहा है क्या, याद कर उसका वायदा यीशु ने कहा है, न त्यागूंगा ना छोड़ूंगा जगत के अंत तक, मेरे मन तू दुखित ना होना, मेरे मन तू दुखित ना होना, मेरे मन तू खेदित ना होना, मेरे मन तू चिंतित ना होना। मेरे मन तू चिंतित ना होना। सच में हमें किसी भी विषय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि बेंजामिन भैया ने हमारे सामने उस गीत के बोल को रखा है। सच में प्रभु हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक वो हमारे संग और साथ है। बेंजामिन भैया, सच में परमेश्वर आपको इस गीत के लिए और आपको आशीष दे, और इन गीतों के द्वारा जिन्होंने इन गीतों को सुना है, इस गीत के बोल को सुना है, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। बेंजामिन भैया, मैं आपसे इस सवाल को पूछना चाहता हूँ। आप काफ़ी एक लंबे समय के बाद आपने पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर के वचन के को अध्ययन करने का आपने फैसला किया, पर इवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक बनने के बजाय आप आज एक अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में आप प्रिंसिपल आप बन गए, ये कैसे हुआ?
इसका भी एक परमेश्वर की तरफ से ही एक योजना था। जब मैं एमए इंग्लिश फाइनल ईयर में था और कुछ कारणवश, क्योंकि मेरे पापा रांजनगांव के थे और मैं एग्जाम लिख करके कुछ काम के कारण से मैं रांजनगांव गया था और वहीं पर मेरी मुलाकात एशियन क्रिश्चियन एकेडमी के प्रिंसिपल प्रेसिडेंट से हुआ और उन्होंने मुझसे मेरा इंटरव्यू वहीं ले लिया। और उस समय में जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, एक जिज्ञासा हुई क्यों नहीं हम जा करके वचन को सीखें और वचन सीख करके हम, मेरा बस मन उतना ही था कि मैं वचन ही सीखूं। और वचन सीखने के बाद में आकर के मैं अपने बीच वाले भाई के साथ में बाइबल सर्वे में मैं लग गया। और बाइबल सर्वे करते समय में जब हम वहां पर थे, जो कि रायपुर के पास में एक जगह गरियाबंद है, जी। वहां पर जब हम गए तो हम कभी कभी इंग्लिश में बात किया करते थे लोगों के सामने में। तो लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए, उससे प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि भाई साहब, आप लोग इंग्लिश में बात करते हैं, दोनों भाई हैं, क्यों नहीं आप यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं। तो हाँ। वहां पर फिर ऐसा बोझ के जैसा लगने लगा कि वाकई में यहाँ पर एक स्कूल की जरूरत है। और वहां पर कोई सब इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, एक गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन वहां की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसा निर्णय लेने के लिए मेरे को और मेरे भाई को प्रभु ने सहायता किया और हम घर घर जाकर के पम्पलेट बांटे। और हमारा यही एक मोटिवेशन था, हमने परमेश्वर से प्राप्त किया था कि अगर एक भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा तो हम स्कूल को कंटिन्यू करेंगे। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से एक क्या, उस साल हमको 11 बच्चे मिले, 11 बच्चे को हम पढ़ाए, दूसरे साल 26 हुए और ऐसे करके 150 बच्चे हुए और 8वीं क्लास तक वो स्कूल को हम चला पाए। मैं 2 साल तक वहां पर प्रिंसिपल का काम करता था, लेकिन भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने बैठता था, एक अंदर से आवाज आती थी और यही वो प्रश्न बार बार हर रोज यही होता था कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। और बार बार ये सवाल मेरे को झंझोर के रख रख देता था। 2005 में चूंकि मेरे लिए जब विवाह का बात चल रहा था घर में, तो उस समय में मैंने निर्णय लिया कि जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं ये प्रिंसिपल का जॉब छोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ और उस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह में मैं बढ़ता चला गया। भाई बेंजामिन, आपने जैसा भी बताया, आपने आपको आपके मन में वो एक आवाज था जो आपको परमेश्वर पुकार रहा था। काफी टाइम के बाद आप फिर बिलासपुर में वापस आने का आपने फैसला लिया। वहां पे जैसे आपने बताया आपकी शादी सिस्टर कैथरीन के साथ हुई, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये भी एक बड़ा ही मजेदार सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, भैया आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले, उधर केरल कहाँ पहुंच गए। और कभी कभी जब मैं प्रचार करने जाता हूँ तो लोगों का ये प्रश्न रहता है, सर आपने लव मैरिज किया है क्या। तो मैं बोला, नहीं भैया, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है, बट वी आर लविंग नाउ। कहने का मतलब ये है कि जब मैं बिलासपुर आया और आने के बाद में जब मेरे लिए अलायंस जब खोज रहे थे, तो बहुत ही आश्चर्य रीति से एक अलायंस ऐसा आया। हमारे एक भाई जो हमारे घर में रहा करते थे और रह करके वो नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में एक अच्छा रिश्ता है अंकल जी, अगर आप बताएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पापा ने बोला कि ठीक है, हम जाकर देखेंगे। और हम जा करके देखे और मम्मी पापा ने पसंद किया, मम्मी पापा की पसंद थी, वो मेरी पसंद थी। तो इस प्रकार से हमारी शादी हुई और आज प्रभु के दया से हमारे शादी को 17 साल हो गए हैं और हम आनंदित हैं, खुश हैं। और वो एक मेरे लिए एक वाइफ से ज्यादा बढ़कर एक दोस्त के समान है और बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट करती है मिनिस्ट्री में। और चूंकि वो मलयाली है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और इस प्रकार से दो एक अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, वेशभूषा, खान पान सब अलग है, फिर भी वो बहुत अच्छे से आकर के एडजस्ट होने में परमेश्वर ने सहायता किया। और आज तक हम 17 साल हो गए और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए, प्रभु की ओर ताकते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बेंजामिन भाई, आपने सही डिसीजन लिया।
मैं एक चीज सवाल देखो मन में एकदम से आया बेंजामिन भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ मलयाली है। तो आपने थोड़ा बहुत मलयालम सीखा? हाँ, मेरा वैसे मैं बोलूं तो कोरचे वैसे अगर मैं कोरचे मलयालम बोलूंगा तो हाँ। वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई होगा और आपको समझने में दिक्कत होगा। नहीं, एक पर मैं बार एक एक्सपेक्ट आंटी मेरे से मलयालम में बात करने लगी, ये समझ करके कि मैं मलयाली हूँ, और मैं आंटी मेरे को मलयालम में बात किए जा रही है। फिर पीछे से उनकी बहू आई, बोले नहीं नहीं इनको मलयालम नहीं आता, ये नॉर्थ इंडिया से एक उपदेशी हैं जो केरल में आए हैं मीटिंग के लिए। तो वो अम्मा जी जो थी वो मेरे को कंधे में ऐसा मार के, एंड अमोने मैं इतना देर से बात कर रही हूँ, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। तो वो भी एक मजेदार एक सिलसिला हुआ मेरे साथ। पर मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा बेंजामिन भाई कि बहुत ही जल्द आपकी तरफ से मलयालम में भी हमें कोई अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलेगा। बॉब, क्या हम बेंजामिन भाई के द्वारा एक और जो गाना है हे खुदा, क्या सुन सकते हैं उसको? Yes, let's go to that song. ऐ खुदा तेरे प्यार को क्या नाम दूं, दे दिया अपने पुत्र को कि मैं पाऊं जीवन अनोखा सा, जीवन हमेशा का। तो झुकता हूँ, गिरता हूँ, करता हूँ प्रणाम, मैं लेता हूँ तेरा नाम है महान। तो झुकता हूँ, गिरता हूँ, करता हूँ प्रणाम, मैं लेता हूँ तेरा नाम है महान। पिछला जीवन था गंदगी भरा, प्रभु यीशु ने लहू से धोकर खुशबू भरा। मेरा पिछला जीवन था गंदगी भरा, प्रभु यीशु ने लहू से धोकर खुशबू भरा। महिमामय जीवन मैंने पाया, उसमें भी प्रभु का अनुग्रह समाया। महिमामय जीवन मैंने पाया, उसमें भी प्रभु का अनुग्रह समाया। तो झुकता हूँ, गिरता हूँ, करता हूँ प्रणाम, मैं लेता हूँ तेरा नाम है महान। तो झुकता हूँ, गिरता हूँ, करता हूँ प्रणाम, मैं लेता हूँ तेरा नाम है महान। Wow. Beautiful song, beautiful lyrics, beautiful voice, and we have lots of feedback that is coming to us on Facebook and on our Zoom. We have from Detroit, USA, a listener asking us, where can I get this song, these songs sung by dear brother Benjamin? We can provide you these songs. If you want the songs, please write to us on Bob's Radio 21.37 FM at gmail.com, and we can send you the songs, or you can also get in touch with us on our WhatsApp numbers, or Benjamin Bhaiya, we can send it to them directly if needed as well, right? Yes, brother. Yeah. आप भेज सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। Yes.
Yes, absolutely. We are so happy. A brother has so willingly shared us his songs. So, definitely, if you would like to have a copy of all these beautiful songs that are in his voice, please let us know and we'll send it across. Anuj, it's beautiful singing, isn't it? एब्सोल्युटली बॉब, मैं एक चीज बताऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बेंजामिन ब्रदर ने बहुत मैं गाने में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, गानों को परखने के लिए भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम बेसिकली टोन डेफ हूँ, पर एक चीज मेरे को पता है कि लग रहा है जैसे जब मैं गाना सुन रहा हूँ कि ये काफी प्रैक्टिकल गाने हैं जो ब्रदर ने लिखा है। Yeah. तो अपने मे बी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को गानों के रूप में उसको कन्वर्ट किया है। एक्सपीरियंस की बातों में करते समय मेरे को एक सवाल बेंजामिन भाई आपसे पूछना है। आपके जिंदगी में आपके बेटे के पैदा होने के समय एक 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 ऐसा एक घटना घटी है जिसमें आपको परमेश्वर के हाथ, उसकी मदद देखने को मिला, क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकेंगे? जी हाँ ब्रदर, ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। मेरे जैसे हम लोग ने मिल करके मैं हमारे बेटे का नाम आशीष रखा है। वाकई में परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रही। जब मेरी मिसेस कैरी कर रही थी और जब वो वापस अपने मायके गई डिलीवरी के लिए, तो जब लेबर पेन उठा, तो उन दिनों में ऐसा होता था कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो पेपर में ऐसे-ऐसे बच्चे पैदा होते थे, कभी किसी के 2 मुंडी है, किसी के 3 आँख हैं, कोई धड़ से चिपका हुआ है, किसी के 3 पैर हैं और पूरा धड़ चिपका हुआ है। ऐसे-ऐसे फोटो देख कर के मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आप जो भी बच्चा देंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप नॉर्मल बच्चा देना, ऐसे मत देना प्रभु, क्योंकि मैं इसको नहीं झेल पाऊँगा। परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा ज़रूर थी। मेरे मन की एक इच्छा थी कि ज़रूर एक लड़का होने से अच्छा, लेकिन मैं कभी उसके लिए माँगा नहीं, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, वो बस मेरे दिल में था। और जब वो लेबर पेन के लिए मेरी मिसेज़ गई, तो उस समय में ऐसा हुआ कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया, परंतु भाइयों वो एनेस्थीसिया काम नहीं हुआ। वो एनेस्थीसिया काम नहीं किया और जो डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। आप चेन्नई में जाएँगे तो वहाँ पर एक बिल रॉथ हॉस्पिटल है जहाँ पर मेरी साली जो है वो काम करती थी और उसके कारण से वहीं पर उसको एडमिट किया गया था। डॉक्टर दाक्षायणी वहाँ पर थी और उन्होंने बोला, कैथरीन मैं रात भर आपके लिए बैठने के लिए तैयार हूँ, परंतु इस वक़्त आपके बेटे का जो पोज़ीशन है वो बार-बार बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसके कारण से उसको सफोकेशन हो रहा है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी बहुत पेन में थी और वो बोली आपको जो करना है करो। तो फिर से वो एनेस्थीसिया डॉक्टर को और भी 5-6 डॉक्टर्स जो उस समय में रहते हैं उनको बुलाया गया और वो एनेस्थीसिया जो देता है डॉक्टर बोला मैं नहीं दे पाऊँगा एनेस्थीसिया फिर से, क्योंकि एक ही बार दिया जाता है। अगर अभी मैं दूँगा तो ये पैरालिटिक हो जाएगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर उन्होंने एक जेल को लगा करके जो बिल्कुल थोड़ा ठंडा-ठंडा फ़ील कराता है, वो पेट में जेल लगा करके ही ऐसा लाइव काट के बच्चे को बाहर निकाला गया। और ये एक बहुत बड़ी घटना, परंतु मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी पत्नी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस पेन को वो झेल ली और इस रीति से हमें एक अच्छा बच्चा मिला और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सारी बातों में हमारी सुदीर सहायता की। परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो। परमेश्वर जो अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ जिन आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, आज भी वही परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है और सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी इच्छाओं को जानने वाला। और हमने जिस प्रकार हमारे बेंजामिन भैया से उनके बच्चे की गवाही को सुना, सच में आज परमेश्वर ने उन्हें एक बेटे को दिया है जिनका नाम आशीष है। परमेश्वर के उस आशीष के लिए हम परमेश्वर को सच में धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेंजामिन भैया, आपने वर्शिपर्स ट्रूप करके एक बैंड को शुरू किया था। आपने इस बैंड को क्यों शुरू किया? और मैं सोचता हूँ मेरे साथ साथ हमारे जो श्रोतागण हैं, आपके इतने गानों को सुनने के बाद उनकी ज़रूर इच्छा होगी कि वो आपकी आवाज़ को लाइव सुने रेडियो पर। और मैं उसके लिए भी आपको निवेदन करूंगा कि आप जब उस प्रश्न का जवाब दें, इससे पहले प्रश्न का, तो आप ज़रूर हमारे साथ, हमारे बीच में हमारे श्रोतागणों के लिए आप एक गीत को भी गाएं ताकि हमारे श्रोतागण वो उस गीत के द्वारा आशीषित हो सकें। तो
पहले मैं गीत गा लेता हूँ, उसके बाद में इसका मैं जवाब दूंगा। ओके जी, बिल्कुल। जब तक यहोवा न बनाए तब तक कुछ न बनेगा, जब तक प्रभु ना चलाए तब तक कुछ ना चलेगा। तू ही चलाए, तू ही सवारे, तू ही तो है मेरा प्रभु। जब तक यहोवा न बनाए तब तक कुछ ना बनेगा, जब तक प्रभु ना चलाए तब तक कुछ ना चलेगा, जब तक यहोवा न बनाए। जीवन में प्रभु यीशु ही सब कुछ बनाता, सबको चलाता। जीवन में प्रभु यीशु ही सब कुछ बनाता, सबको चलाता। हर सांस हर धड़कन भी उसके दम से वो चलाता। वो ही संभाले, वो ही उठाए, वो ही हर क्षण मुझको सामर्थ दे। जब तक यहोवा न बनाए तब तक कुछ ना बनेगा, जब तक प्रभु ना चलाए तब तक कुछ ना चलेगा, जब तक यहोवा न बनाए। Wow. Wow. Amazing. Absolutely. Beautiful. Beautiful. Yeah. Rajan Bhaiya, thank you so much. Yes. या तो जैसा मैं बता रहा था ब्रदर, क्यों हमने ये वर्शिपर्स ग्रुप का एक ऑर्केस्ट्रा का चालू किया है, जी। उसका कारण ये है क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत ही जाने माने प्रचारक हैं बिलासपुर में और पूरे इंडिया में कह सकते हैं। विशेष करके बिलासपुर में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही आदर के साथ में उनका नाम लिया जाता है। एक ऐसे सेवक जो खड़े होकर के सड़क में प्रचार करने वाले प्रचारक हैं और ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले प्रचारक हैं, लोगों से मिलने वाले प्रचारक हैं, गरीबों के साथ खड़े होकर के उनके साथ चाय पी लें, पानी पी लें, ऐसे एक प्रचारक थे। और हमको बहुत से शादियों में निमंत्रण मिलता है। बहुत से शादियों में जाने के बाद में ये पता चलता है, ऐसा लगता है कि क्यों हम आए, क्योंकि एक रिश्ता है, एक अच्छे लोग हमको बुलाए, हम जाते, परंतु वहां पर जाकर के कभी-कभी मन खींच सा जाता है। ये बात को देख करके लोग जो डीजे लगा रहे हैं, फिल्मों के गाने को चला रहे हैं और इस प्रकार से मन बहुत ही खेदित होता था। हम चुपचाप खाना खा के जो भी हमको देना है वो दे करके हम चुपचाप आ जाते थे। लेकिन मन में एक रहता था, काश परमेश्वर का वहां गीत गाया जाता तो लोग उस गीत को सुनते और परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों को, प्रेम की बातों को, उद्धार की बातों को गीतों के माध्यम से सुन सके। ये बोझ बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से मेरे हृदय में दौड़ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया और एक बैंड का निर्माण किया जो वर्शिपर्स ग्रुप के रीति से है और अभी तक प्रभु की दया से हम 10 प्रोग्राम दे चुके हैं और बहुत से लोग आकर के मेरे को पर्सनली, एक भाई तो मेरे को स्टेज में आकर के गले मिल लिया सबके सामने और बोला कि ब्रदर, आपने जो माहौल, जो समा बांध दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उससे बढ़कर मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। कंटिन्यू। और मेरे जो बीच वाले भाई की बेटी है वो भी गाना गाई और उसमें वो आकर के एक भाई बोले
बेटी आपको परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया है, अभिषेक किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। और मेरे बड़े भाई के जो दोनों बेटे हैं वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, मेरा बेटा ड्रम्स बजाता है। कुछ कुछ चीजों की अभी अभाव है, हमको और भी जरूरत की बातें चाहिए, जैसा रिदम पैड है, गैजेट्स है। ये सारी बातों को हम इस वर्शिपर्स ट्रूप से जो भी हमारा फीस जैसा हम लेते हैं, क्योंकि हमको वो भी लेना पड़ता है साउंड सिस्टम। परंतु यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को देखने का, परमेश्वर की गीतों के माध्यम से प्रभु की महिमा करने का एक बहुत ही सुंदर एक समय मिलता है। दूसरा एक और बात भी है, हमें एक असेंबली हॉल की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें से भी उसमें हम जमा करते हैं ताकि हम उसको हम पूरा कर पाए। यही कारण था, परंतु बेसिक यही कारण था कि परमेश्वर की महिमा उस विवाह के या बर्थडे में या जहां कहीं भी हम एकत्रित होते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा होना है, ये हमसे परमेश्वर चाहता है, और इस प्रकार से मैंने इसको चालू किया है। थैंक यू बेंजामिन भाई। बेंजामिन भाई, आपने जो एक प्रश्न का जवाब पहले दिया था सिस्टर कैथलीन के बारे में, आपके बेटे के पैदा होने के बारे में, मैं उस पे एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा। मैं एक्चुअली अपना रेस्पेक्ट देना चाहूंगा हर माओं के लिए। पहली बात जो दर्द है कि पूरी जिंदगी में अपने भर में अपने बच्चों को पैदा करके और उनको दिखाते आगे बढ़ाते आए, मेरे को सच में दिल से मैं सारी माओं को पहली बॉब रेडियो से को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेंजामिन भाई, आपसे कुछ शब्दों में क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले पर्सन हो, तो कुछ शब्दों में आजकल भारत में लोग के द्वारा सामना किया जाने वाला चुनौतियां क्या है, वो आप हमें थोड़े शब्दों में बता सकते हैं, और हमारे जो श्रोता हैं जो हमारे को सुन रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए भी कुछ बातें बता सकते हैं मुझे। हाँ, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रदर आपने पूछा है। भारत में रहना ही एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण एक जीवन होता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हैं वो वाकई में एक चिंतनीय है। जैसे जवानों के लिए नौकरी की आवश्यकता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आप गांव जाएंगे तो एजुकेशन भी बहुत पुअर है, बहुत ही स्थिति खराब है। और विशेष करके हमारे इस परिवेश में छत्तीसगढ़ में हर घर में, जब गांव में जाएंगे तो हर घर में ये दारू हड़ियां बना करके लोग पीते हैं और पड़े रहते हैं। बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कभी कभी उनको ये भी बोलता हूँ, आप लोगों का ये जीवन से तो बेहतर जानवर लोगों का जीवन है, वो लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप ये सब मत करिए करके मैं उनको समझाता हूँ। भाइयों, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का विषय है। और विशेष करके जवान लोग जो आज शैतान के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, एक बहुत बड़े बोझ के साथ में मैं इस बात को सामने रखना चाहता हूं कि हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करके हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे को बोझ दिया परमेश्वर ने कि एक बैंड चालू करना है, वैसे ही हम बोझ के साथ में बहुत सारी बातों को, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स के रीति से हम जवानों के लिए खोल सकते हैं, और एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा उनके साथ में हम दो होने के लिए, प्याला होने के लिए, और उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ उठने बैठने के लिए, और परमेश्वर के प्रेम को उनको बताने के लिए। जैसे मोटर मैकेनिक हो गया, कंप्यूटर का एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, कारपेंट्री हो गया, और अचार और पापड़, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे कुछ काम चालू करके हम उनके लिए कर सकते हैं, ताकि उनको काम भी मिले और उनको एक अच्छी संगति मिले, और अच्छी संगति से वह अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और वाकई में हमारा देश एक बहुत ही प्यारा देश है और बहुत ही खूबसूरत देश है। इस खूबसूरत देश में किसी की नजर ना लगे, और इस प्रकार से हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यही बोझ के साथ में मैं ये प्रोत्साहन के शब्द में आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ भारत के देश के जवान लोगों के लिए जरूर कुछ करिए, गांव के लोगों के लिए करिए, क्योंकि यही हमारे लिए बैकबोन है। और अगर जवान नहीं है तो भारत देश नहीं है, अगर किसान नहीं है तो भारत देश नहीं है। आइए कुछ जरूर इनके लिए हम करें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच बेंजामिन भाई, आपने आज हमारे साथ आए, हमारे साथ
काफी बातें की, आपने अपनी जिंदगी के बारे में काफी कहानियां हमें बताई, गाने सुनाए जो हमें बहुत प्रभावित किया, और स्पेशली आपने जो लास्ट पॉइंट अभी आपने जो बताया कि भारत के बारे में, हम सब भारत के नागरिक हैं, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं उसके बारे में, और सच में ये एक सोचने की बात है जवानों के लिए, ये सब बात हमको सोचने के चाहिए। और जैसे हमने रेडियो को शुरू भी किया था, जो एक सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सिंह साहब ने बताया कि 3 अरब लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है। ये सवाल आज सबके दिल में रहना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसके बारे में सोचें, और कि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। थैंक यू सो मच बेंजामिन भाई अगेन। और सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही आशीषित ये प्रोग्राम रहा हम सब के लिए, और सच में हमने बेंजामिन भाई की जो जीवन की गवाहियों को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे साथ साथ हमारे आरजेस के साथ और हमारे श्रोतागणों के साथ हम सब आशीषित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद ऐसे प्रभु के महान कामों के लिए जो परमेश्वर अपने जनों के जीवनों में हमेशा करता है, और वो आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमने उसकी विश्वास योग्यता का आज देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद सच में बेंजामिन भाई आपके लिए, आप हमारे साथ इस रेडियो बॉब्स रेडियो चैनल में आपने अपने समय को दिया, हमारे साथ आपने अपने जीवन के विषय में चंद गवाहियों को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप हमसे ज़रूर फिर से एक दिन मुलाकात होगी, और हम फिर से इस रेडियो प्रोग्राम में आपको ज़रूर आमंत्रित करना चाहेंगे। और सभी श्रोतागणों को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए अपने समय को निकाला। और इसी तरह हमेशा हर सोमवार बॉब्स रेडियो 21.37 ऑनलाइन क्रिश्चियन रेडियो को आप हमेशा सुन सकते हैं। हर सोमवार हम 11 बजे से जुड़ते हैं, चालू करते हैं। आप हमें हमेशा सुन सकते हैं। स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें बॉब्स रेडियो 21.37 FM। Yes, thank you so much. Benjamin Bhaiya, you have to come back and join us again soon, yeah? धन्यवाद ब्रदर, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके इनविटेशन के लिए। जरूर प्रभु के महिमा में, प्रभु के अनुग्रह में जरूर मैं आपसे मिलूंगा, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। सबको जय मसीह। Thank you, dear listeners. Thank you so much for staying tuned. Please do join us next Monday as well. As Ajay Singh was telling us, we have a lot of things coming up in the next week, so don't forget to tune in, and also do share it with others. Let your friends and family also come to know about these wonderful stories and what God is doing in their lives. Well, it's about time for us to say goodbye, along with Ajay Singh and Ajay Anuj and the wonderful evangelist Benjamin Routh, and to all our listeners. This is Time for Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.